Today we are going to explore our chapter 2, biological classification, and we are presently going on chapter 3. But just to quickly recap what we have studied in chapter 2. We have studied Whitaker's five kingdom classification. ठीक है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने कौन कौन से किंगडम पढ़े हैं? In that we have studied Monera, that is the first kingdom, which is having the organisms which are prokaryotic unicellular organisms, and it has bacteria, archaebacteria, and eubacteria, and mycoplasmas. Three are there. Then moving to second, Protista. It has different kinds of protists. Okay, chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, protozoas, and slime molds. Then moving to next, there was fungi. Okay, kingdom fungi. Kingdom fungi has eukaryotic multicellular organisms for the first time, and they have those organisms that are saprophytic. That means they grow on dead and decaying organic matter. Okay. Then we come to the viruses, viroids, prions, lichens. These were the organisms which were connecting link. Viruses is a connecting link between plants and, we can say, not plants and animals, the connecting link between the non-living and living. Okay, so we have discussed this. Afterwards, we come to plant kingdom. We have started chapter 3, plant kingdom. In that, we have started the plant kingdom, Halophyta. First, we have started with Halophyta. Then we studied algae in it. And then we have studied bryophytes in it. ठीक है? Algae के बाद bryophytes हमने पढ़े उसमें. So there were pteridophytes. Then we have studied pteridophytes in it. So till now we have studied gymnosperms also. So three things we have studied: pteridophytes. Four kingdoms already we have studied. That is pteridophyte, bryophytes, and Halophyta. This we have studied. Now we will be just quickly revising the gymnosperm, because our last topic was gymnosperm. So what is a gymnosperm? What is the common name of gymnosperm? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. जिम्नोस्पर्म कौन सा प्लांट होता है? कॉमन नेम क्या होता है जिम्नोस्पर्म का? कॉनिफर्स बोलते हैं. जिम्नोस्पर्म्स को बेटा क्या बोलते हैं? कॉनिफर्स, कोन बनाने वाले प्लांट्स. और जिम्नोस्पर्म एक कह सकते हैं ऐसा प्लांट है जो कि सीडलेस है, बट नेकेड सीड्स उसके अंदर. सीड्स तो आते हैं बट नेकेड सीड्स आते हैं. जिम्नो मीन्स नेकेड एंड सीड्स मीन्स स्पर्म्स. सो इसके अंदर ऐसे कोन्स आते हैं, फीमेल कोन, जिनके अंदर सीड्स एक्सपोज्ड रहते हैं. क्लियर? इसमें दो तरीके के कोन होते हैं, फीमेल कोन और मेल कोन. आप स्क्रीन देख पा रहे हो. जिम्नोस्पर्म के 3-4 पॉइंट दे रखे हैं. जिम्नोस्पर्म आर प्लांट्स in which ovules are not enclosed by an ovary wall. ओव्यूल डायरेक्टली एक्सपोज रहता है, उसके ऊपर कोई फ्रूट की वॉल नहीं होती, इसीलिए बोलते हैं कि दे आर the seeds are naked. The seeds are not inside food. जनरली क्या होता है, हम कोई भी फल खाते हैं, उस फल के अंदर बीज होता है. तो इसके अंदर कोन में बीज लगता है, और कोन एक ऐसा लकड़ी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें वुड के पतले पतले से इसके लीफलेट्स होते हैं, सूखने के बाद जो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं. उनके अंदर बीज होते हैं, बिना किसी फल के. फल नहीं होता, तो इस वजह से ये क्या हो गए, नेकेड सीड्स हो गए. इसीलिए प्लांट, ऐसे प्लांट जो नेकेड सीड बनाते हैं बिना फ्रूट के, उन्हें जिम्नोस्पर्म बोला जाता है. सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? जाइंट रेडवुड ट्री शिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज बिलोंगिंग टू जिम्नोस्पर्म. सबसे बड़ा ट्री है शिकोया, जो कि जाइंट रेडवुड ट्री है. वो जिम्नोस्पर्म में सबसे लंबा ट्री है. बाकी और ट्रीज में भी सबसे लंबा ट्री होता है ये. एंड
सबसे छोटा भी ट्री जिम्नोस्पर्म का ही है, जिनको बाइलोबा बोलते हैं उसको, तो स्मॉलेस्ट है. नाउ द अदर फीचर. The roots are generally taproots in some genera having fungal association in the form of mycorrhiza. किसी प्लांट के रूट्स में माइकोराइजल एसोसिएशन है. जिम्नोस्पर्म के रूट्स में माइकोराइजा नाम के फंगल एसोसिएशन है. फंगस भी ग्रो होती है. साइकस उसका एग्जांपल है. साइकस में स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जो कि नाइट्रोजन. पाइनस में माइकोराइजा है एंड यहाँ पे दिखा रखा है पाइनस इज इन फंगल एसोसिएशन ऑफ पाइनस. यानी पाइनस जिम्नोस्पर्म का नाम है. पाइनस एक जिम्नोस्पर्म नाम. ये यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है आपको. नीडल लाइक लीफ है इसमें. तो इस ट्री के रूट में, इस प्लांट के रूट में माइकोराइजा एसोसिएशन मिलती है, फंगस मिलती है आपको. फंगस इनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है. एंड साइकस में, साइकस वाला जो प्लांट है जो नीचे दिखा रखा है, उसके अंदर कोरोलॉइड रूट है. कोरोलॉइड रूट क्या है? ऐसी रूट जो नाइट्रोजन फिक्स करती है. नाइट्रोजन फिक्स करने वाली एल्गे रहती है. साइकस में लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड. साइकस के लीव सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं. फाइनेटली लीव्स इन साइकेड, needle like leaves in conifers. The gymnosperm are heterosporous, haploid microspores and megaspores are produced within sporangia on sporophyll, which are arranged spirally along an axis to form compact strobili or cones. ठीक है. तो जिम्नोस्पोर्म्स क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं. डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाते हैं. फीमेल स्पोर बड़ा होता है, मेल स्पोर छोटा होता है. एंड स्पोरेंजिया में बनते हैं ये स्पोर्स एंड स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली. ठीक है. तो कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली क्या एक स्ट्रक्चर है, कोन जैसा स्ट्रक्चर है जो कि लीफ के कंडेंसेशन से ही बना है. उसके अंदर कोन्स में, उसके अंदर दो तरीके के हैं ये स्ट्रोबिली. मेल स्ट्रोबिली होगी तो पॉलन ग्रेन बनाएगा, फीमेल स्ट्रोबिली होगी तो ओव्यूल बनाएगा या सीड बनाएगा. ठीक है. तो मेगास्पोर मदर सेल आपका cells of nucleus protected and by envelopes and the composite structure is an ovule. Megaspore mother cell divide meiotically to form four megaspores. One of the megaspore is enclosed within the megasporangium nucellus. Develop into a multicellular female gametophyte that bears two or more archegonia female sex organs. The female gametophyte and the pollen are released, carried in the current and come in contact with the opening of ovules. तो ना मेल जो होता है कोन वो रिलीज कर देता है जिससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं. हम फीमेल कोन में वो पॉलन ग्रेन्स जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं जिससे कि बीज बन जाते हैं. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हमने इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है. तो जिम्नोस्पर्म के ऊपर हम लोग वीडियो भी देख सकते हैं इसमें. So is this video visible to you? Everyone? Is it visible? Everyone? Are you able to listen it? Look at the picture of a pine tree. You actually see a cone shape and here we have two types.
told you, right? What is story? Here also the main story have the micro. Now, this is the micro. This micro developed and this will classify then to the gases or origin. So this is how the main gas. Similarly, in case of the female strawberry, the female strawberry contains the sporangiate. Beta sporangiate is consists of the beta sporophylls. These beta sporophylls are spores which germinate for the female site. And this female site कितने अच्छे से इसमें बता दिया सब चीजें, आपने समझ में आया। मेल स्ट्रोबिली जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिएट है, मतलब उसमें स्मॉल स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स भी आप उन्हें कह सकते हो। और उसके बाद स्ट्रोबिली विद माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर ऐसा स्ट्रोबिली है, लीफ का कंडेंस स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्पोरोफिल कहलाता है, प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर। और वो क्या प्रोड्यूस करता है? मेल स्ट्रोबिली में माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है, मतलब माइक्रोस्पोर बनाने का स्ट्रक्चर है उसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम है। यानी मैंने क्या बोला था? स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो स्पोर बनाता है। स्ट्रोबिली विद माइक्रोस्पोरोफिल, और उसके अंदर ऐसी स्ट्रोबिली होगी यानी लीफ का कंडेंस्ड कोन होगा जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें ऐसे लीव्स होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स यानी लीव्स होंगे उनके अंदर। तो यहाँ तीन चीजें मेन है। मेल स्ट्रोबिली मतलब मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिएट है, देन उसके अंदर कैसी स्ट्रोबिली है? माइक्रोस्पोरोफिल वाली स्ट्रोबिली है, और वो क्या बना रही है? माइक्रोस्पोर्स बनाती है। एंड मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर को जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बनता है। मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट या स्पर्म बनाते हैं। नाउ मेगास्पोरेंजिएट, नमस्ते, मेगास्पोरेंजिएट, मेगास्पोरोफिल मेगास्पोर्स बनाते हैं। सेम मेगास्पोरेंजिएट में क्या होता है? मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर्स यानी कि फीमेल स्पोर्स है। मैंने पहले ही बताया था कि जो साइज में बड़ा स्पोर है वो आपका फीमेल स्पोर होता है, एंड देन फीमेल गैमेट्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपको ये वाली स्लाइड ये बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बताया है कि मेल और फीमेल कोन सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं। जैसा एग्जांपल पाइनस के प्लांट पे दोनों कोन सेम प्लांट पे होते हैं, और डिफरेंट ट्री पे भी हो सकते हैं, जैसे साइकस में होते हैं कि मेल साइकस अलग होता है, फीमेल साइकस अलग होता है। सो लाइफ साइकिल बता रहे हैं, और ये जिम्नोस्पर्म का ट्री दिखा रखा है। तो जिम्नोस्पर्म का ट्री एक्चुअली में ये स्पोरोफाइट स्टेज है। जिम्नोस्पर्म ट्री इज द मेन dominant stage of the plant, and that is a sporophyte. So it is the structure which is mainly seen, and it is a structure which will be having the spore producing structure, that means cones. Here the spore producing structures are present in the tree, so therefore tree is called sporophyte. And the sporophyte, the cones that are producing the pollen grain is a male cone. तो मेल कोन जो होता है वो इसमें पोलन ग्रेन बनाता है, तो इसमें एक स्ट्रक्चर होगा मेल कोन, ठीक है। मेल कोन क्या बना देगा? पोलन ग्रेन बना देगा, सिंपल सी बात है। तो पोलन ग्रेन क्या है? एक्चुअली में पोलन ग्रेन आपका एक मेल गैमेटोफाइट बनाने वाला सेल है। पोलन ग्रेन एक ऐसा सेल है
जो जर्मिनेट जब होता है तो मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेल गैमेट्स बनाने वाला स्ट्रक्चर बनाता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है। स्पोरोफाइट तो ये ट्री है, दिस ट्री इज स्पोरोफाइट, बट ट्री में मेल कोन जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कि पॉलन ग्रेन बना रहे हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, और मेल गेमेटोफाइट 2-3 सेल स्टेज होता है बस, यानी कि पॉलन ट्यूब बनाता है वो मेल गेमेटोफाइट, उसके अंदर 2 मेल गैमेट बनाता है मेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट 2-3 सेल स्टेज स्ट्रक्चर है बस, वो शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर है, वो बनता है। और ऐसे ही फीमेल कौन में फीमेल गैमेटोफाइट बनता है और उसमें एग बनता है। तो जो मेल गैमेटोफाइट में पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो जाते हैं तो वो फीमेल गैमेटोफाइट पे लैंड होते हैं और वहां फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है तो वो सीड बन जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल। स्पोरोफाइट विल डेवलप इनटू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। So it is very clearly seen here. You can even take a screenshot बहुत ही क्लियरली, और आप भी इस तरीके से बना सकते हो। ये डायग्राम बिल्कुल टफ नहीं है, बट अगर आप इसको कहीं और से देखोगे तो वो स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होगा, वो थोड़ा टफ हो सकता है। बट यहाँ पर सिंपली रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना है कि सर्कल्स में आपको पॉलन ग्रेन्स और मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बना दिए हैं। ये देखो, इसका साइज जो पहले वाला है फीमेल जो है उसका साइज थोड़ा बिगर बना के दिखाया है कि इट इज बिगर कौन, और मेल जहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पर स्मॉलर बना के दिखा है, इट इज स्मॉलर माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल कोन। देन मेगास्पोर वाले में भी मियोसिस हुई, इसमें भी मियोसिस हुई, मेल में दोनों ने अपने अपने स्पोर्स बनाए। वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ये फ्लो चार्ट, और वर्टिकली डाउनवर्ड आने पे माइक्रोस्पोर्स ने माइटोसिस की, मेल गैमेटोफाइट बना 3 सेल्ड स्टेज का, पॉलन ग्रेन में से जर्मिनेट हुआ और पॉलिनेशन हुई, मतलब वो रिलीज हो गया पॉलन ग्रेन्स। एंड देन इधर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता आ रहा है, माइटोसिस हुई है, माइटोसिस में एग सेल बना है, नीचे दोनों आकर सेंटर में फ्यूजन करने के लिए ऑरेंज वाला जो पॉलन ग्रेन है इट इज कमिंग नियर, इट हैज कम बाय द विंड, विंड से आ गया है पास में, एंड इट विल जर्मिनेट। ठीक है, जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब, वो पॉलन ट्यूब से वो मेल गैमेट पास हो जाएगा इन एंड फ्यूजेस विद द एग, एग में फ्यूज हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि गेमेटोफाइट डेवलप हो रहा है स्पोरोफाइट में. Gametophyte is developing the sporophyte, and some sporophyte again get recycled and converted into the gametophyte. It also gives rise to the gametophyte. Here, Yes, ma'am. that's clear हो गया? Yes, ma'am. It's clear. So it is simple. It's not so hard. Now Yes, ma'am. coming to the next thing, we'll study about angiosperms. So अब हम angiosperm को देखेंगे. This is the slide which is of angiosperm, and you can see land plants broadly divided into vascular, non-vascular, and vascular plants are seedless plants and seed plants. दो तरीके के होते हैं vascular plants. Non-vascular plants में तो आ गए thallophyta आपका, and thallophyta में there are no we can say bryophytes and therophytes do not have xylem phloem, so non-vascular हो गए. And vascular plants में seedless plants दो category रखी, seedless and seed plants. Seedless seed plants में दो तरीके के हो गए, naked seed वाले gymnosperm और closed seeds वाले angiosperms. देन क्विक रिव्यू, जिम्नोस्पर्म का नेकेड सीड्स हैं, उसके अंदर कोन्स, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, थिन नीडल लाइक लीफ होते हैं कॉनिफर्स में, क्योंकि वो ज़्यादातर स्नो एरिया में रहते हैं, तो ताकि वाटर भी कंजर्व करें, उनके अंदर का पानी उनके अंदर ही रहे और जो स्नो उनके ऊपर गिरे वो फिसल के नीचे भी गिर जाए. तो नीडल लाइक लीव्स होते हैं, लार्ज ग्रोइंग प्लांट्स हैं ये. देन अनदर क्लास ऑफ सीड प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, जो अभी हम लास्ट कैटेगरी है हमारी प्लांट्स की, वो एंजियोस्पर्म है. वो ऐसे प्लांट्स हैं जो सारे अर्थ पे सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. अडेप्टिव फीचर्स हैं कि उनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, यूनिक रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं. देन ये इनका लाइफ साइकिल का एक स्कीमेटिक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि स्पोरोफाइट, इसमें भी डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट से शुरू होता है. तो दिस इज हैविंग स्पोरोफाइट जनरेशन, एंड स्पोरोफाइट जनरेशन में दो तरीके के गैमेट्स बन गए. देन इट फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ अगेन पॉलन ग्रेन बनेगा,
ठीक है, दोनों दो तरह के इसमें भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे। पॉलन ग्रेन बनता है एंड पॉलन ग्रेन बनने के बाद क्या बनता है, एग बनता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एग भी बनेगा। पॉलन ग्रेन और एग बनेगा मेगास। तो वो कब बनेगा, वो इनसे बनता है, मेगास्पोर से बनता है एग, मेगा गैमेटोफाइट के थ्रू बनता है एग, एंड माइक्रोस्पोर से बनता है मियोसिस के बाद, माइक्रो गैमेटोफाइट के बाद स्पर्म। तो ये दोनों से बनता है। तो मेगास गैमेटोफाइट एग बना देता है और माइक्रो गैमेटोफाइट स्पर्म बना देता है। ये दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, फिर दोबारा से सीड बन जाता है, सीड दोबारा से स्पोरोफाइट बन जाता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और जो यहाँ पर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बना रहा है वो एक्चुअली में एक तो एंथर है, फ्लावर का एंथर, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इनमें पॉलन ग्रेन बनाने के लिए एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, 10th में ही पढ़ा है। और एक आपका ओवरी है, ओव्यूल है। ओव्यूल ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओवरी के अंदर होता है, और ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल आपका मेगा गैमेटोफाइट होता है, ओव्यूल के अंदर ही आप एग बनता है, प्लांट्स का एग बनता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है। Yes, ma'am. देन फ्लावर्स, फ्लावर के बारे में बताना ज़रूरी है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनका मेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही फ्लावर होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, अलाउ फॉर ग्रेटर रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इनकी वजह से ग्रेटर रिप्रोडक्टिव सक्सेस होती है प्लांट की, मोर अट्रैक्टिव होते हैं, दीज आर मोर अट्रैक्टिव। देन इन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, 10th में भी हमने पढ़ा है कि सेंट्रल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल, देन स्टेमन इज देयर, then petals are there, sepals are there, receptacle is there, pedicel is there, anther, filament is there. So these are the structures which are present in the flower. So petal is the outermost, we can say, after the sepals. सेपल सबसे बाहर होते हैं, पर सेपल्स के अंदर जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं वो पेटल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेपल्स बड कंडीशन में, ये सेपल्स है, ये बड कंडीशन, जो फ्लावर बिल्कुल छोटा था तब इसने बड कंडीशन में, अगर ये फ्लावर ऐसा था तब बड कंडीशन में इसको पूरा कवर करके रखता था सेपल। हरे कलर का जो सेपल था वो इसको पूरा कवर करके रखता था, इस बड को, फ्लावर बड को। तो सेपल्स का काम प्रोटेक्टिव है, सबसे बाहर है। पेटल्स उसके अंदर है, कलरफुल स्ट्रक्चर। स्टेमन्स क्या है, स्टेमन्स इस पूरे को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जिसमें एंथर भी होता है और फिलामेंट भी होता है। दो पार्ट्स हो गए। पिस्टल क्या है, पिस्टल ये सेंट्रल का पार्ट है, दिस इज पिस्टल, द फीमेल पार्ट इज पिस्टल। This is the structure which is the flower structure. Here the flower is, one flower is shown, petals highly modified leaves होते हैं, brightly color हो जाते हैं, जो कि इनका फंक्शन होता है कि पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेंगे। सेपल्स क्या है, इनक्लोज करता है फ्लावर को बड कंडीशन में, जब वो खुला नहीं है, जब कली से फूल नहीं बना, जब तक वो उसे बंद रखता है। मेल पार्ट फ्लावर का स्टेमन है, स्टेमन के सबसे ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेड होते हैं स्टेमन के, वो एंथर हेड होते हैं। और एंथर जहाँ पे पॉलन ग्रेन बनता है, मैच्योर होता है, वो पार्ट है एंथर। फिलामेंट क्या है, स्टॉक है जो एंथर को पकड़ के रखते हैं, दे आर द स्टॉक दैट होल्डिंग द एंथर। देन स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टिकी पार्ट वेयर pollen lands, style slender stalk where pollen grains reaches the ovary, and ovary where the ovule egg is contained। तो ये किस एक फ्लावर को डिसेक्ट करके दिखा रखा है, एंथर रखे हुए हैं यहाँ पे, 6 सेमन रखे हुए हैं और सेंटर का पिस्टल रखा हुआ है, जिसमें सबसे टॉप में एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसे स्टिग्मा बोला है, जो स्टिकी होता है, पॉलन ग्रेन्स को अटैच करने का काम करता है। देन बीच का ट्यूब का पार्ट है, जैसे स्ट्रॉ जैसा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉ जैसा है, बिल्कुल ट्यूबुलर पार्ट है, ये स्टाइल होता है और इसके अंदर से पॉलन ट्यूब जाती है। लास्ट का पार्ट बिल्कुल राउंड है और ये एग को रखता है, ओव्यूल को रखता है, तो ये ओवरी पार्ट है। तो इस तरह कैसे डिसाइड करके स्ट्रक्चर्स बताए हैं पिस्टल के भी, और स्टेमन भी अलग कर रखा है इसमें। फ्रूट्स, अब जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा, तो पॉलन ट्यूब आएगी ओवरी तक और उसमें वो गैमेट रिलीज करके फ्यूजन कर देगी एग में, ओवरी के अंदर एग है, उन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन,
जो कि कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनाएंगे जो ओवरी को राइपन करेंगे और ओवरी को ही फ्रूट में बदलेंगे। तो दिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये चीज होती है कि ओवरी क्या हो जाती है, फ्रूट में बदल जाती है, ओवरी बिकम्स फ्रूट। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स है। इससे क्या होता है, फ्रूट्स को कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता है तो बीजों को इधर उधर फेंकता है जिससे नए पौधे बन जाते हैं। तो डिस्पर्शन, इसी वजह से जानवर खाते हैं, बीजों को इधर उधर बिखरा देते हैं। कुछ बीज खुद भी उड़ के चले जाते हैं, लाइट वेट के होते हैं, विंग्ड बीज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हुक्स होते हैं जो एनिमल के साथ साथ उनकी स्किन में, बालों में फंस के चले जाते हैं। कुछ बीज फ्लैशी होते हैं जो कि पीचेस, टोमेटो, ऑरेंजेस, ड्राई नट्स एंड रेजिन्स, कुछ ड्राई भी होते हैं फ्रूट्स। अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं। देन आपका टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और बताया हुआ है यहाँ पे। सिंपल फ्रूट्स हैं जिनमें एक ही पिस्टल है, जो एक ही ओवरी से बने हैं, उनको सिंपल बोल देते हैं। टोमेटोज, एप्पल्स। एग्रीगेट फ्रूट्स, न्यूमरस पिस्टल, बहुत सारे पिस्टल हैं, एग्जाम्पल रास्पबेरी है। मल्टीपल फ्रूट्स फॉर्म फ्रॉम क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे क्लस्टर में फ्लावर्स हैं और सारे के सारे राइपन हो गए हैं, सारे के सारे फर्टिलाइज हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट। कॉम्प्लेक्स फ्रूट भी उसे कहते हैं। फ्रूट फ्यूज इनटू बिग मासेस, एग्जाम्पल में पाइनएप्पल्स। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन का पूरा लाइफ साइकिल दिखा दिया कि फीमेल पार्ट अलग करके दिखा दिया, उसमें ओव्यूल्स हैं ये दिखा दिया, मेगास्पोर्स हैं। ओव्यूल मतलब मेगास्पोर, और हर मेगास्पोर में इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हर मेगास्पोर में होता है, ये वाला। मतलब एक ओव्यूल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेल्स तो पूरे हैं, और 7th सेल, ये सेंटर वाला सेल होता है। इस सेंटर वाले सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे देखो सेंटर में आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में 7 सेल हो गए ये टोटल, क्योंकि ये भी एक सेल वॉल ही है, साइड में जो सेल लग रही है सेंटर वाले सेल की। तो 6 की तो अपनी अपनी खुद की सेल वॉल है, छोटी छोटी, जो मैंने काउंट करी। और 7th सेल वॉल सेंटर वाले सेल की है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, एक नहीं है। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर बनता है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई। सही से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बट आपको काउंट करके दिखा दिया, क्योंकि बाकी 6 वाले में तो अलग अलग अपना अपना न्यूक्लिया है, बट इसमें क्या है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिया टोटल हो गया। ठीक है, देन उसके बाद पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन यहाँ लैंड किया स्टिग्मा पे, और फिर वो वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने लग गई एंड इट विल गो इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल में आ गई और उसमें मेल गैमेट्स, देखो स्पर्म्स न्यूक्लियस छोड़ देगी एंड टू रिलीज एंड इट विल जर्मिनेट एंड एग को फर्टिलाइज कर देगी। एग विल फर्टिलाइज, एग धीरे धीरे क्या, सीड में बदल जाएगा। यहाँ देखो, फर्स्ट स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग, 1 स्पर्म यूनाइट विद 2 पोलर न्यूक्लिया। एक तो यहाँ एग में फर्टिलाइज होएगा और एक यहाँ पे 2 न्यूक्लिया के पास पहुंच जाएगा। देख रहे हो, 1 विल फर्टिलाइज द एग, येलो वाला एग फर्टिलाइज करेगा एक स्पर्म, क्योंकि 2 स्पर्म आ रहे हैं यहाँ से, ये 2 स्पर्म आ रहे हैं, 2 स्पर्म्स आर कमिंग। तो एक तो इधर रहेगा, इधर फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा एक से फर्टिलाइज, और एक इधर फर्टिलाइज करेगा और एंडोस्पर्म नाम का स्ट्रक्चर बनाएगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, 3 हाफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें, एंडोस्पर्म में। क्लियर? तो ये आपका एंजियोस्पर्म का पूरा हो जाता है, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है वो सीड बन जाता है। मैच्योर होके क्या बन जाता है, सीड। सीड को जब हम ग्रो करते हैं, वापस से मिट्टी में डालते हैं, वापस से प्लांट बनेगा, वापस उसमें फल आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, और वो लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का व्यू लेना है तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें भी स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है। जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, इसमें स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी जो हमें दिख रही है, जो पेड़ हमें दिखता है, वो आपका स्पोरोफाइट है। ठीक है,
और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्टेजेस अल्टरनेट्स, और जिसकी हैप्लॉइड जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो अल्टरनेट करती हैं थ्रू टाइम एंड जनरेशंस विद अ स्पोरोफाइटिक स्टेज। अलग अलग टाइम पे इसमें स्पोरोफाइट क्या करता है, गैमेटोफाइट को जनरेट करता है, यानी फ्लावर्स बनाता है, फ्लावर्स में गैमेट्स बनाता है। हैप्लॉइड 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस में जो 2n क्रोमोसोम है, मियोसिस नाम की डिवीजन जब होती है, मियोसिस क्या है, एक तरह की सेल डिवीजन है। तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, जब उसके अंदर मियोसिस होती है, तो मियोसिस क्या करती है, उनको हैप्लॉइड में कन्वर्ट करती है, सिंगल हाफ कर देती है, मतलब डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऐसी डिवीजन है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ हाफ हाफ क्रोमोसोम, यानी जितने आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 23 पेयर्स में से गैमेट में सिर्फ 23 रह जाएंगे, ओनली 23 विल बी देयर पेयर में से, पेयर नहीं होगा। डिप्लॉइड में पेयर होता है, 2n होता है, बट 2 विल बी कैंसिल्ड आउट एंड 23 विल रिमेन। तो 46 की जगह 46 का, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम से उनके अंदर कितने आ जाते हैं, 23 आ जाते हैं, मियोसिस के बाद आधे हो जाते हैं। ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या स्पोरोफाइट की लाइफ साइकिल होती है कि द स्पोरोफाइट 2n will give rise to a gametophyte n and the n will produce gametes। n किस में चेंज जाता है, गैमेट्स में चेंज जाता है, और जब दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, when two gametes will fuse it will form a diploid or structure। two gametes will fuse it will form a diploid structure 2n। ठीक है, 2n बना लेगा। ये क्लियर हुआ आपको? इज इट क्लियर टू यू दक्ष? Yes, तो ma'am. लाइफ साइकिल हमने समझाई अभी। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. It is clear to me. Overview of life cycle. In ovule, production of megaspore n via meiosis, megaspores mitosis, megagametophyte। इन एंथर प्रोडक्शन, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर्स, ओव्यूल को दूसरा नाम Ma'am, मेगास्पोर्स है, मेगास्पोर्स बनाने ओव्यूल ऐसा ma'am, स्ट्रक्चर जो मेगास्पोर बनाता है, ma'am, मियोसिस करता है। ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, are you able to hear my voice? व्हाट? Ma'am, are you able to hear my voice? अभी सुनाई दी मुझे, पहले नहीं सुनाई दी थी। तो मैम वो कुछ इंटरनेट का इशू होगा, वरना मैं आप बोल रहा था आपसे कि मुझे समझ अच्छा आ गया ठीक है। पीछे। तो इसमें ओव्यूल प्रोडक्शन में बात कर रही थी, ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है, दूसरा दोबारा से लाइफ साइकिल का ही फ्लो चार्ट दे रखा है, जिसमें लिखा है कि ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ओव्यूल के अंदर क्या बना रहा है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या दे रहा है, एग्स देता है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के लिए एग देता है। जो मेगा गैमेटोफाइट है एक्चुअली में वही ओव्यूल है, उसमें एग होता है। और माइक्रोगेमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन है, उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। एक मेगा गेमेटोफाइट में ओव्यूल है, ओव्यूल में एग है, एग बनाएगा, यानी ओव्यूल का ही दूसरा नाम है मेगा गेमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम माइक्रोगेमेटोफाइट है, और पॉलन ग्रेन के अंदर स्पर्म होते हैं प्लांट के। तो मेल गैमेट बनाने का स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन के अंदर होता है। ठीक है, तो एग और स्पर्म क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करेंगे, एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद एक ऐसा प्लांट बनाएंगे, सीड बना देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, सीड। सीड को जब हम ग्रो कराते हैं तो क्या बनता है, स्पोरोफाइट प्लांट। और प्लांट में फ्लावर आते हैं, और फ्लावर के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं, मियोसिस होती है, फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस होती है, मेल गैमेट बनने की प्रोसेस मियोसिस होती है। यानी कि स्पोरोफाइट में ऐसा प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर बनता है। क्या बनता है स्पोरोफाइट के अंदर, फ्लावर। और फ्लावर के अंदर मेल पार्ट्स भी होते हैं और फीमेल पार्ट्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, फ्लावर के अंदर पिस्टिल होता है और फ्लावर के अंदर स्टेमन होता है। स्टेमन इज द मेल पार्ट एंड द पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट। In anther production, microspores meiosis occur, microspore mitosis, microgametophyte pollen grain है। तो माइक्रोस्पोर क्या कर, माइक्रोस्पोर्स में क्या है, माइक्रोगैमेटोफाइट है जो कि पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर्स
कह लो या पॉलन ग्रेन कह लो, उन दोनों का मीनिंग एक ही है, माइक्रोस्पोर्स ही पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है। Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, it is clear to me. वेरी गुड।